uh, I'll be happy to share my experience because I don't have any formal slides for this presentation, but I think I just share in next 1.5 hours about my experience, and That will I'll be start. fine. I'll start with the quality publication, why and where. So this is basically my topic, and I'll focus on that. So, and if you have any question, you can ask in between if you want. I don't mind, or even at the end, you can also discuss the things in next half an hour of completing my lectures. So, friends, as usual, I will because many of our friends prefer to talk in bilingual, both the languages, Yes, sir. Hindi, Hindi and English. Yes, So, sir. I'll keep. I I'll will keep be. yes. Bilingual. So I'll keep switching. I'll keep switching myself. के कभी हिंदी में बोलेंगे, कभी इंग्लिश में बोलेंगे. ताकि there are many of our friends from the south and other places, so they may not understand sometime in Hindi. But I think we'll both both the languages, so you'll not feel any kind of problem. So आज जो है वो we'll talk on the quality publication as the topic is given to me. And as far as the quality publications are concerned, I'll start with the publications and why publications and where to publish. These are the two main topic that I'll focus. हमें क्यों पब्लिश करना है ये एक बड़ा सवाल है, और हम कहाँ पब्लिश करें ये दूसरा सवाल है. पहले हमें ये डिसाइड करना होगा whether we want to publish or not and what to publish, right? What to publish means the data that you have is publishable or not publishable. So these are things when you work experimentally, or when you work theoretically, or when you work like as a philosophy to think something, then you are bound to write something. For example, if you are a philosopher, आप एक philosopher हैं, and you have thought processing, आपने कुछ चीजें सोची, साहब ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए. So I'll be talking keeping in consideration that you are from diversified group of disciplines like arts, humanities, from science and technologies, right? So never mind that science students, science teachers, that they are focusing on philosophy and other things, but my concern is that you all should like focus on the publication. Doesn't matter which subject you belongs. So, and then you start thinking something. So how can you transform, right, these thoughts into the writing form? So you have to jot down something like आपने कुछ चीज सोची, आपने लिखना शुरू कर दिया उसको, ठीक है, फिर आपने कुछ सोचा, फिर आपने लिख लिया. So this is writing is important. Now what to write and where to write, or what to publish and where to publish is another important questions. पहले आपको डिसाइड ही करना होगा कि आपको पब्लिश करना है या नहीं करना, फिर डिसाइड करना होगा कि कहाँ करना है पब्लिश, राइट? No, first I will talk what to publish. This is the big question. Suppose आप zoology के student हैं, students I means like you are candidate from zoology department as a professor or assistant professor, or from any science and technology department, or from Hindi, Urdu, English languages, or from social sciences, history, management. Then you have to decide what to write, what to publish. उससे पहले आपको जाना पड़ेगा what kind of a work that you have developed. Suppose I just take an example. You being a faculty assistant professor, I call it as a researcher. Whether you are doing yourself or you are guiding some students, doesn't matter. बस गाइड करने में वो काम करेगा. So we have to decide हमें कैसे उसको डिसाइड करना है, right? And otherwise क्लास. So हमने क्या जो है वो हमें पब्लिश करना है. Then you have to start working on some problems. Problem based on some theoretical problem, it could be some experimental problem. Experimental problem में you have to perform some experiments and then data is generated. Zoology, botany, chemistry, physics, biotechnology, biochemistry, medical sciences. Whether it is a survey data or whether it is a experimentally produced data with some techniques.
then you have got some data. आपने डेटा कलेक्ट कर लिया. डेटा में भी सर्वे डेटा. आपने साहब एक सर्वे किया साहब, जैसे अक्सर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सर्वे कराते हैं साहब, मार्केटिंग का सर्वे चल रहा है, सेल्स का सर्वे चल रहा है, कोई किसी प्रोडक्ट के बारे में सर्वे चल रहा है, एंड दे वर्क, ये प्रोडक्ट कितनी यूटिलिटी है इसकी सिस्टम में, सोसाइटी में. दिस इज अ सर्वे. You end up with like thousands, out of thousands, 90% people like this product. This is a data, and this is the conclusion result, that this particular product is very much acceptable, 99% acceptable in the society, maybe in a specific society, yeah, a specific region, right? So this is the output. Now you have a data in your hand. अब आपके हाथ में एक डेटा है. डजंट मैटर कि डेटा क्या है, व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू हैव, कितना बड़ा डेटा है, कितना छोटा, बट यू हैव ए कंप्लीट डेटा, एंड दैट डेटा इज जनरेटेड ऑन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. एंड व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट वाज टू नो what is the acceptability of this particular product. You can name any product. For example, you can name any brand, you can name any kind of any product, right? कोई फूड प्रोडक्ट है, राइट? कोई नया ब्रांड है, फूड प्रोडक्ट ब्रांड है, राइट? आपने उसकी एक्सेप्टेबिलिटी देखना है इस पर्टिकुलर सोसाइटी में, ये आपका एक टारगेट है. जो भी डेटा प्रोड्यूस होगा वो एक टारगेट जो के बेसिस पे, एक ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे वो डेटा प्रोड्यूस होगा. आपने ऑब्जेक्टिव बनाया, हमें एक पर्टिकुलर सोसाइटी में, पर्टिकुलर लोकेलिटी में, पर्टिकुलर रीजन में ही देखना है प्रोडक्ट एक्स की एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, एंड यू फाइंड लाइक 100% एक्सेप्टेबल है. सो दिस इज योर रिजल्ट्स, दिस इज योर फाइनल कंक्लूजन. Now you have to publish it. What to publish? This data to be published. And why to publish? You have to publish this data in order to publicize it, in order to promote that particular product and the acceptability of the product in the society, so that everybody know, okay, this is a very nice product and everybody like this product. So this is the reason why you publish it. Now next, third question, where to publish? Now this is a tricky question. Where publish? मान लिया आपने जो है वो न्यूज लेटर में, किसी डेली न्यूज में निकाला उसको, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स निकाला, एक ये भी पब्लिकेशन हुआ, राइट? यू कैन थिंक ऑफ पब्लिशिंग इन सम मैगजीन, यू कैन थिंक पब्लिशिंग इन सम scientific journals if it is scientific work, or you can think publishing in some other kind of a magazines. Now you have to decide where to submit your work, where to publish. Now what is most important to know where to publish? देखिए मैं ये सब जो चीज बता रहा हूं, don't take it easy. This is well fit in any scientific work, whether you are publishing in Nature or Science or Lancet or top-notch journals and high-tier journals, total scientific journals. This hypothesis and this criteria is well fit in everywhere. I'm just trying to make you a very simple way, just like a very generalized and layman person like you have just starting your career to publish. Now where to publish is very important. So you have to decide, इसमें क्राइटेरिया क्या है, इसमें आपको देखना पड़ेगा किस जर्नल में. देखिए मेरा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो रिसर्च की है, ये जो आपने डेटा जनरेट किया है, वो डेटा कहाँ जाना चाहिए. उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, कोर जर्नल. कोर जर्नल का मतलब ये होता है कि आपकी फील्ड का, आपकी रिसर्च का बिल्कुल स्पेसिफिक जर्नल है, एंड दैट जर्नल इज वेल circulated in the peers or in the people, those who are working in that particular area. It's called core journal. For example, जैसे ड्रग डेवलपमेंट पे कोई किसी ने काम किया, कोई ड्रग डेवलप की, कोई ड्रग डिजाइन की, कोई ड्रग आइडेंटिफाई की. यस,
and that drug data will be published in the journals which are related to the drug development. You call it as a core journal. मान लिया आपने उसको जो है वो you publish that journal, that work in the some journal which are not related to drug but some other journal. आपने भेजा, वो चली छप गया, तो वहां पे पढ़ने वाले लोग कम होंगे, आपके वर्क का साइटेशन कम होगा, आपके वर्क की पब्लिसिटी कम होगी, एंड योर वर्क इज नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एंड यू आर नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड. करेक्ट. इसलिए वेयर टू पब्लिश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाई टू पब्लिश इज क्लियर एंड वेयर टू पब्लिश इज क्लियर एंड व्हाट टू पब्लिश इज क्लियर. सो सबसे पहले आपको छापना क्या है, किस चीज को, किस डेटा को छापना है. डज द डेटा मेक सेंस? If any data which doesn't make sense, no conclusion, no outcome, no utility, right, then that data will not be published or need not to be published. देखिए, छापने को तो आप दे दे thousands of journal, आप कहीं भेजेंगे छप जाएंगे, पेड हो अनपेड हो. अब इस पे भी लोग सवाल उठाएंगे, पेड में छापना चाहिए छापना, वो भी मैं बताऊंगा बाद में. व्हाट डज पेड मीन्स एंड व्हाट काइंड ऑफ अ पेड जर्नल्स टू बी टारगेटेड. तो हमें सबसे पहले डिसाइड ही करना है whether you are in science stream, arts streams, medical science, engineering, technology, or in any discipline across the globe, you have to decide what to publish. Suppose आपने एक साल काम किया एक प्रोजेक्ट पे, and at the end of the day what you conclude that you have not reached any conclusion. Now how do you know you have not reached to the conclusion? Because you have to correlate your conclusion from the objective. What was your objective of that research? Suppose आपका objective था to understand the function of a particular gene, right? And you end up with there's no function is known for this gene. आप नहीं पता कर पाया उसका function. So what do you publish? आपने बहुत काम किया, दिन रात लगे रहे, बहुत डेटा जनरेट किया, काफी पैसा खर्च हुआ उस प्रोजेक्ट पे, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर नॉट एबल टू नो द फंक्शन ऑफ दैट जीन एट ऑल. सो चाहे 1 साल हो या 2 साल हो, यू हैव नो राइट, यू हैव नथिंग टू डू विद दिस वर्क टू बी पब्लिश. आपको उस वर्क को पब्लिश करना नहीं चाहिए. दूसरी चीज क्या है, आपने काम किया, you reach to the midway, right? Midway means like half of the story is completed. अभी आपको पूरी बात पता नहीं चली है. Your conclusion is not 100% in line with the objective that you raised. Again, you hold the data. आपने डेटा पब्लिश नहीं करना है. That data is not to be published. देखिए, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी पेपर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी वर्क. छापने को तो आप 2 पेज का पर्चा, हमारे यहाँ शमशाद मार्केट एक मिसाल दी जाती है, शमशाद मार्केट की प्रेस से आप छापती है, लोकल मार्केट, बट दैट डज नॉट मेक एनी. आपको ही डिसाइड करना है. दूसरे नंबर पे आपको ही डिसाइड करना है कि हाँ ये काम पक गया, this work is totally matured and not will be acceptable by a good journals, quality journals, right? Then you have to move where to submit. Why to submit मैंने बता दिया, क्योंकि आपको publicize करना है उसको. If you won't be able to publicize that work, then your work will not be recognized and you will not be recognized in the field, and that things will be like totally lost. All the money has gone into the trash, into the into the trash and lost, and that does not make any use of that work, that time, that money. इसलिए पब्लिश करना जरूरी है, इसलिए हमें पब्लिश करना है, और रिलेवेंट है वो सोसाइटी से, तो सोसाइटी का उसमें फायदा होगा. सो इसलिए जो वर्क हम काम करें वो सोसाइटल इम्पैक्ट भी होना चाहिए उसका, ठीक है. एंड देन यू हैव टू फाइंड द जर्नल, कहाँ छापना है हमें, जिसमें सर्कुलेशन ज्यादा हो, कोर जर्नल हो. ये तो हमारी बेसिक क्राइटेरिया हो गया. मतलब दिस इज ट्रू फॉर एवरी डिसिप्लिन ऑफ योर लाइफ, एवरी डिसिप्लिन ऑफ योर फील्ड, राइट, फ्रॉम साइंस टू ह्यूमैनिटी, राइट. This is the basic criteria of the publication.
है ना. Now then comes to the what does the quality publication means. Now quality publication हम कैसे पता करेंगे? How do you know the quality publication? How do you know the quality journal? क्वालिटी पब्लिकेशन वही होगा जो अच्छे क्वालिटी हाई क्वालिटी जर्नल में छपेगा. बट इफ यू आर नॉट एबल टू पब्लिश इन हाई टायर हाई क्वालिटी जर्नल, then you are not able to recognize yourself as the quality work. अच्छा, what are the index to know the quality work? The index of quality work is how your paper is being cited, right? How many times your work is being cited by your peers, right? What does the peers means? Peers means, like, suppose if you're working in the area of plant physiology, or you're working in the area of disease development, right? So this disease development area, hundreds of people are working in this area, right? क्या वो 100 लोग जो आपके फील्ड में काम कर रहे हैं वो आपके काम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? दैट इज व्हाट द क्वालिटी मींस. देखिए, देयर आर बाइसेस, आई नो. आपने एक काम किया, आप यू कम अक्रॉस विद सम पेपर. मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ बिल्कुल. आपने देखा यार, ये तो मेरा फ्रेंड, ये तो मेरा कलीग है, फ्रेंड नहीं, कलीग है मेरा, और इसका रेफरेंस मैं नहीं दूंगा, इसमें साइट नहीं करूंगा अपने पेपर में, क्योंकि ये मेरा कलीग है, इसके साइटेशन बढ़ जाएंगे. एक अंदर से एक जेलसी, एक जेलस फैक्टर आ गया, आपने उसको साइट नहीं किया, हालांकि दैट वर्क इज वेरी रिलेवेंट फॉर यू एंड दैट हैज टू बी साइटेड, राइट? तो आपने उसको हटा दिया, तो उसका साइटेशन, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी क्वालिटी खराब थी. इसका रीजन ये है कि आपने उससे बाइसेस थे, आप उसके नेचर से, उसके वर्क से, और आपने एक जेलस फैक्टर की वजह से उसका काम साइट नहीं किया. यू हैव नॉट साइटेड हिज और हर वर्क इन योर स्टडी. सो आपने कहा, ठीक है, हम नहीं छापेंगे, हम नहीं साइट करेंगे इसको. तो वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, वो सॉरी, वो उसकी क्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा. हालांकि आपको मालूम है द वर्क इज वेरी रिलेवेंट एंड गुड. सो क्वालिटी वर्क जो होगा वो साइट होगा, besides this factor which I have talked about, which is a human nature. So आप जो है जब साइट करेंगे उस पेपर को, इसका मतलब है कि वो वर्क हैज ए रिलेवेंस. इसीलिए नंबर ऑफ साइटेशंस जो होते हैं किसी काम के, वो रिफ्लेक्शन होता है उस क्वालिटी वर्क के. इसलिए कभी कभी अवार्ड्स में, फेलोशिप्स में, बहुत सारे अचीवमेंट्स अप्लाई करने के लिए, नॉमिनेशन के लिए, नंबर ऑफ पब्लिकेशन के साथ मांगते हैं कितने साइटेशंस हैं आपके. उस पर भी बताऊंगा कि साइटेशन आर नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट. अब आप कहेंगे यार ये असद साहब जो हैं वो दो बातें कर रहे हैं. अभी तो कह रहे हैं कि साइटेशन इज इंडेक्स ऑफ इम्पैक्ट, इंडेक्स ऑफ क्वालिटी, और फिर कहते हैं साइटेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. तो मैं इसका दूसरा पहलू बताता हूं, व्हाई साइटेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट. देखिए, नंबर ऑफ साइटेशन एज ए होल इज नॉट अ सिग्निफिकेंट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लाइक among your peers in the department or in the center in the university. क्योंकि मैं बताता हूँ, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा एक गेम स्टार्ट हुआ है, 2% साइंटिस्ट, टॉप 2% साइंटिस्ट एंड टॉप 5% साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, और लोग उसको पब्लिसाइज कर रहे हैं, उसको पेपर में नाम आ रहे हैं, और दुनिया भर की चीजों में 2% साइंटिस्ट करके. एंड दिस 2% साइंटिस्ट इज लाइक अ फ्रॉड. अब आप कहेंगे साहब ये तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी, 2% scientists are fraud. 2% scientists are not fraud. This mode of publicity is a fraud. क्यों फ्रॉड है मैं बताऊंगा आपको. आपके साइटेशन कहीं से उठाए, आपका नाम है राम नरेश पाल. राम नरेश पाल अपना साइटेशन कर रहे हैं पाल RN, जैसे यासीन AMA, यासीन मोहम्मद अशरफ, अरविंद कुमार A. This is how the citation protocol is this. Now, there are many Kumar A,
there's a lot of surname Kumar, Arvind Kumar, Ashok Kumar, Ashu Kumar. There's so many Kumar. Narendra Kumar, Devendra Kumar. ठीक है, सो कुमार पकड़ेगा, फिर वो फर्स्ट नेम देखेगा. अगर फर्स्ट नेम एंड कुमार सेम है तो वो आपको साइट कर देगा. तो व्हेन यू फिल्टर आउट योर साइटेशन इवन फ्रॉम स्कोपस, although Scopus is very stringent, right, compared to Google Scholar, because Google Scholar pick up from every damn place. Then अगर आप फिल्टर आउट करें तो there are many papers which has citation in your account, in your name, but these are not yours, right? But because of the number of citations increasing, right, you'll be benefited. So overall, I tell you example, many good scientists, they reported, I mean, I have got the message through Twitter that his students got in 2% scientists, but he has not named in 2% scientist. Now you can imagine. So don't go to that citation business, but go focus on your quality work. Now, how does your quality decide it? This is the big question again. आप कहेंगे साहब ये बार बार क्वालिटी की बात कर रहे हैं, बट कैसे हम क्वालिटी देखेंगे? ना तो साइटेशन से हम देख पा रहे हैं क्वालिटी. अच्छा, फिर एक बात होती है इम्पैक्ट फैक्टर. ना इम्पैक्ट फैक्टर अगेन इज अ बिग गेम ऑफ द जर्नल्स. जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर जो होता है वो साइटेशन पे डिपेंड करता है, और साइटेशंस जो होते हैं वो हाउ मेनी टाइम्स द आर्टिकल इज बीइंग साइटेड इन दिस जर्नल, राइट, इज द इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेशन. मान लिए जर्नल ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, तो जर्नल ऑफ बायोकेमिस्ट्री में जो पेपर पब्लिश हो रहे हैं वो कितने टाइम साइट हो रहे हैं, मतलब बायोकेमिस्ट्री जर्नल कितने टाइम साइट हो रहा है और जगह, उन टोटल साइटेशन पे ये डिपेंड करेगा कि जर्नल ऑफ बायोकेमिस्ट्री का इम्पैक्ट क्या है. एंड दैट्स इम्पैक्ट कैलकुलेशन. नाउ सपोज देयर आर मेनी जर्नल्स व्हिच आर very high profile journals, but these journals have a low impact factor. I can name you in my own field. For example, Journal of Biochemistry, BBRC, Journal of JBC. These are very high profile journals. They are highly cited, hundreds years old journals. More than 100 volumes have been published, continuous running on. But the impact is low. There are many journals who started in last 10 years or 5 years or 6 years or 10 years old journals, no recognition, but their impact factor is very high. जिन journals का मैंने नाम लिया, इनके impact तो 2.5 और 4 के बीच में है, 4-5 के बीच में, और जो impact high हैं जैसे 7, 8, 9, 10, these are just started journals, couple of years back, right? बहुत सी सीरीज हैं. So no, I mean, suppose if my paper is published in biochemistry, I would love it. I mean, it's a great achievement. Our impact factor is not 3 even. But if I publish in like some other journals which are having high impact, has no perception, no index, citation index, I don't mind it. लेकिन impact के नाम से बहुत बड़ा journal है वो. Except high tier journals like in Nature series hai, Cell hai, Nature hai, which is a really very high impact, but they try to maintain. So my question is that we should not go to the many Indian journals that are very good, but we don't want to prefer in publish in Indian journal because of the perception. अरे साहब आपने Indian journal में छाप दिया, जैसे IGMR है, medical science, is very good journals. हालांकि impact भी बुरा नहीं है उसका, 4+ impact है. But publishing, I would prefer to publish in international journal rather than Indian journal. So हमारा perception जो है कुछ और बना हुआ है. And this is what we are bound to go accordingly. So what is important is you look the quality in your work and quality
impact in the field in which you are working is more important. Remember, these two things are, if you understand the quality of your work in your own field, like how does your work impact in your own field is important. I mean, no matter where you are publishing, आपने नेचर में भी छाप दिया बट इसका कोई इम्पैक्ट अगर नहीं है तो देखिए पेपर छापने में आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है. फिर आप कहेंगे साहब ये फिर फ्रॉड की बात कर रहे हैं. Because I am editor of many journals and I am reviewers of large number of journals. I am regularly reviewing many papers. What is the main problem? Many of your papers turn down from the editor's desk. आपने भेजा, एडिटर ने वापस कर दिया, आपने भेजा, एडिटर ने वापस कर दिया. और उसी जर्नल के पेपर, आज ही मेरे पास एक पेपर रिव्यू होने आया है एक जर्नल से, जहां जिस जर्नल ने मेरा पेपर रिजेक्ट कर दिया. रिव्यू में नहीं गया, रिव्यू से पेपर अगर रिजेक्ट होता है दैट मीन्स योर साइंस इज नॉट करेक्ट. You need to improve your science. You have to modify it, revise it, because reviewers, experts will give you some comment. But if your paper is rejecting from the desk of the editor, right away in 2-3 days, 4 days, 5 days, without peer review, without reviewing the paper, it means that make a biasness to the paper. Because देखिए अगर इस स्टेज पे हम कोई काम इस जर्नल में भेज रहे हैं तो जर्नल रिलेवेंट होगा तभी हमने भेजा है, लेकिन जर्नल रिजेक्ट कर देता है. तो दिस इज अ फ्रॉड. मैं बताता हूं अपनी एग्जांपल. आई हैव सबमिटेड इन वन जर्नल couple of time, but that paper rejected my work. They have rejected my work, and that work was published in another good journal later on. But the same kind of work, and they said there's no scope of your work. This is the easy sentence to reject the paper. There's no scope in the journal. All right, and believe me, today I received the review from the same journal for one paper. कि साहब इसको आप रिव्यू कर दीजिए. तो it means editor has passed through and they sent to the peer review to check the paper. So once it come to the peer review, I have to look into it from the scientific perspective, whether I reject it or whether I accept it or I get it, revise it. लेकिन एडिटर ने उसको एक्सेप्ट किया, उसकी क्रेडिबिलिटी को, उसके. तो वही पेपर एक साइंटिस्ट का, एक रिसर्चर का रिजेक्ट हो रहा है एडिटर से. देखिए रिव्यूअर्स अगर रिजेक्ट कर रहा है दैट मेक सेंस. ठीक है, कोई रिव्यूअर बहुत हार्श होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, बहुत टफ होते हैं, वो आसानी से नहीं एक्सेप्ट करते हैं चीज़ों को, चाहते हैं बहुत सारी चीज़ें हो, क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं. बहुत से रिव्यूअर माइल्ड होते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो एक ही जर्नल में 2 तरह के पेपर होते हैं, राइट. लेकिन वही पेपर जर्नल हमसे जो है पूछ रहा है कि आप इसे रिव्यू कर दो, और हमारा पेपर उसने रिजेक्ट कर दिया ना. हाउ डू यू, दैट जर्नल इज वेरी हाई इंपैक्ट जर्नल. तो आप क्या उसकी क्रेडिबिलिटी क्या कहेंगे, व्हाट इज द. सो credibility of editor is very very important. आज की तारीख में, आज की डेट में, to get the good reviewers is very very difficult because journals don't pay a penny to the reviewers and editors and they take task. नंबर ऑफ पेपर्स का बर्डन बढ़ गया है, पब्लिकेशन का बर्डन बढ़ गया है, रिव्यूअर्स मिल नहीं रहे हैं, डिले हो रहा है उसके अंदर. तो फिर वो औने पौने इधर से उठाया, उधर छापा, उधर से उधर, इसे किसी को ले लो, किसी को मत लो. देयर इज अ लॉट ऑफ chaos going on across. This is going on in the publication business. Many journals are paid. They take a lot of charges from the author if they publish, but they don't pay to the reviewer. They don't pay to the editor. Until unless the editorial office इनका होता है, उसमें जो एडिटर होते हैं, मैनेजिंग एडिटर वगैरह, वो तो पेड होते हैं, वो तो दे आर एम्प्लॉइज, तो उनको पे करते हैं. लेकिन जो ऑनरी एडिटर्स होते हैं, हम काफी जर्नल्स में एडिटर हैं, तो विल नेवर गेट अ पेमेंट. तो why should I spend my time? Why should I review the papers carefully? आई डू. मेरी मर्जी चाहेगी मैं उसे कैजुअली देख के रिजेक्ट कर दूंगा, मेरी मर्जी चाहेगी इसको एक्सेप्ट कर लूंगा. मैंने देखा अच्छा ये कोई अपना जान पहचान का बंदा है और ये चलो एक्सेप्ट कर लो. मेरा देखा मैंने कोई पेपर आया, वो यार इसको तो मुझे रिजेक्ट करना है, इसे नहीं छापने दूंगा, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया. सो दिस काइंड ऑफ ए बिजनेस इज गोइंग ऑन इन द होल पब्लिकेशन डोमेन. अब आप अगला सवाल मुझसे पूछेंगे कि साहब हम कैसे, मतलब इस हाउ कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस and how should go beyond this? How can we publish our paper in a good journal if this is the case? Yes, it is very tough. We are facing a lot of problems in publishing in good journals and some other journals because of the same fact, because editor is biased. Sometimes editor is biased to our country. There are many papers with high profile work, high command work, but from author from India,
एडिटर फ्रॉम यूके, यूएसए, दे डोंट कंसिडर इट। वो कहते हैं साहब इंडिया में काम ही नहीं होता है, रिजेक्ट कर दिया उसने। सो many time many editors and reviewers, they just use their stereotype perception. So this is a disadvantage for authors like us, and nobody can control this problem, because there's a thousands, millions of journals are available, lakhs and lakhs of journals are available, and multiplied by this number of lakhs into further hundreds of editors and reviewers are available. तो जिस जर्नल में एडिटर्स और रिव्यूअर्स के नंबर ज्यादा हैं, वो जर्नल की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है। अवॉइड पब्लिशिंग इन दैट जर्नल। जो जर्नल्स कोर जर्नल्स हैं, and those journals which are well defined with the policies and scope and accountability जिनकी maintained है, having 1 or 2 editors, 3 editors, or specific reviewers domain, such journals are good. ये मैं एक जर्नल, एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, कहीं क्राइटेरिया नहीं है। You don't find this kind of a rule, regulation or criteria anywhere in the world. ये मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ। आपका क्राइटेरिया जर्नल सिलेक्शन का क्या होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि आप पेड में भेजें या अनपेड में भेजें। बहुत से पेड वेव भी कर देते हैं, बहुत से पेड वेव नहीं करते, बहुत से पेड की क्वालिटी खराब होती है, बहुत से पेड की वेरी, जैसे नेचर कम्युनिकेशन है, पेड है बट दे वेरी हाई प्रोफाइल जर्नल्स। फ्रंटियर्स बहुत सारे हाई प्रोफाइल, दे आर ऑल पेड, राइट। हालांकि फ्रंटियर्स पे भी क्वेश्चन मार्क है क्रेडिबिलिटी पे, उसी क्राइटेरिया पे जो मैं बता रहा हूँ उसके, देयर इज अ लॉट। हालांकि दे आर ऑल Q1 जर्नल्स, Q1 Q2 जर्नल्स। मैं बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ एडिटर जहां ज्यादा होंगे और नंबर ऑफ हैंडलिंग एडिटर और ज्यादा होंगे, वहां इशू खड़ा होगा। उसकी वजह यह है, इसकी एग्जांपल आप यूं समझिए कि आपने एक कॉपी चेक करी एज एग्जामिनर, 100 कॉपीज हैं आपके पास, 10 कॉपीज एक टीचर ने चेक करी, 10 कॉपीज दूसरे टीचर ने, 10 टीचर इन्वॉल्व हैं, 10 कॉपी सबने चेक करी। एक ही पेपर था, एक ही सिलेबस था, एक ही क्लास के बच्चे थे। डू यू थिंक दैट you are doing justice with the students? I don't think, because एक टीचर, फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत हाई मार्किंग करी, मैंने सब 10 में से 100 में से 80 85 80 85 नंबर दिए। यू हैव गिवन 75 70 75 70 75, किसी और ने 60 65 60 65 तक दिए। हालांकि उन बच्चों ने तकरीबन एक ही रेंज में लिखा होगा, जो आपकी मार्किंग में हाईएस्ट 65 गए, मेरी मार्किंग में हाईएस्ट 85 गए, मिस्टर एक्स वाई जेड की मार्किंग में हाईएस्ट 75 गए। तो व्हाट इज why this disparity? There is no acceptability for the disparity. You cannot judge the students. You are not justice with the students. इसीलिए एक ही टीचर कॉपी चेक करता है एक पेपर की एक वक्त में, राइट। एक ही पेपर कॉपी, एक ही टीचर कॉपी चेक है, चाहे 100 हो या 200। ठीक है, कॉम्पिटिशन की कॉपीज होती हैं कुछ, अब तो OMR सिस्टम है तो स्कैनर्स हो जाती हैं, अगर कुछ कोर्सेज में ऑब्जेक्टिव स्मॉल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मार्क करना, 10 में से आप कोई 8 नंबर दे रहा है, कोई 10 में से 6 दे रहा है, कोई 7 दे रहा है। यही चीज एग्जैक्टली द सेम थिंग इज फॉलोइंग इन द जर्नल्स। जर्नल के अंदर क्या हो रहा है, यू आर गिविंग सबमिटिंग पेपर, सेम पेपर आपका रिजेक्ट हो रहा है और सेम पेपर किसी दूसरे ऑथर का एक्सेप्ट हो रहा है। वो किसी और हैंडलिंग एडिटर के पास चला गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, वो किसी और के पास चला गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, किसी ने रिजेक्ट कर दिया। तो देयर इज अ लॉट ऑफ सो these journals, these citations, these impact of the journal will not decide your quality. Remember, note it down. This will not at all decide the quality of your work. What decides the quality of your work is your own work and its work's impact in the society. For example, मैं ड्रग डिस्कवरी पे काम कर रहा हूँ, एंटीमाइक्रोबियल ड्रग डिस्कवरी पे काम कर रहा हूँ। सो मैंने जो है वो एक रिसर्च की और वो ड्रग ऐसी मैंने बनाई, जो ड्रग जो है या वैक्सीन बनाया, जो ड्रग जो है वो एकदम उसने पैंडेमिक को खत्म कर दिया, राइट। सो
अब चाहे कहीं भी छापूं उसको, मैं किसी भी छोटे जर्नल में छापूं, हाई इम्पैक्ट में छापूं, लो इम्पैक्ट में छापूं, हाई साइटेड जर्नल में छापूं, लो साइटेड में छापूं, डजंट मैटर। मैंने काम कर दिया और मेरे उस दवा से सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ा, और लोग जो है वो उसे खा के ट्रायल से अप्रूव होके उसे लोग जो है वो उनके डिजीज खत्म हो गई। सो बताइए व्हाट डज इट मीन? हाउ डू how do you monitor and how do you judge this kind of a journalist? What is more important? What is the impact? Now again you can ask another question, or you will ask a question. मैं उससे पहले बता दे रहा हूँ आपको। आप कहेंगे साहब बहुत सी रिसर्च ऐसी होती है जो अप्लाइड नहीं होती है, सोसाइटी से कोई मतलब ही नहीं। यस ट्रू, इट डजंट है। अब एक आदमी गालिब पे रिसर्च कर रहा है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ उर्दू के लोगों को। I'm sorry, I'm not criticizing anybody. If somebody is from Urdu background, just मेरे जहन में आ गया गालिब का नाम, क्योंकि मैं खुद असदुल्ला खान नाम मेरा है, तो असदुल्ला खान गालिब का भी नाम था, इसलिए शायद। सो गालिब पे उसने कुछ रिसर्च की। गालिब की रिसर्च का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा? आपको क्या लगता है? कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो अप्लाइड रिसर्च तो नहीं है ये। तो क्या इसमें क्वालिटी नहीं होगी? क्वालिटी होगी। इट इज अ बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च। ये एक इंफॉर्मेशन गैदर करेगा कि सब गालिब कैसे शायर थे, गालिब क्या थे क्या नहीं थे। उसके बाद जो है उनके बारे में कोई चीज लिखेगा, कोई स्टेटमेंट आएगा, और एक चीज एक स्टेटमेंट बनेगा उसका। वो इन्फॉर्मेशन लोगों को पता चलेगी। जो कंसर्न लोग हैं उस फील्ड में वो उसको पढ़ेंगे, उससे फायदा उठाएंगे, एंड उसको यूटिलाइज करेंगे डिफरेंट कोर्सेज में, प्रोग्राम में। इकोनॉमिक का बंदा कोई है, यू आर फ्रॉम इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इकोनॉमी हमारी क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी पे, इस पर आपने कोई रिसर्च करी, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। आपको पैसा कहाँ रखना चाहिए, किस बैंक में रखना चाहिए, बैंक में कितने दिन रखना चाहिए, सर्कुलेशन में पैसे को कब लाना चाहिए। सो दिस ऑल डायरेक्टली थिंग। तो रिसर्च के मोड और डिफरेंट रिसर्चेस डिफरेंट टाइप की होंगी। कोई जरूरी नहीं कि हर रिसर्च डायरेक्ट सोसाइटी में आए, लेकिन देयर आर मेनी रिसर्चेस इवन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आल्सो, right, which are somehow giving you the basic and fundamental root level information, and that information is being utilized by applied researchers. तो उसका भी उसको हम कहते हैं either direct impact or indirect impact. Alright, so हमें ये सोचना है while we are planning for our research or while we are focusing on our research, right, कि हमें बेसिकली इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या होगा। अगर हमारा इम्पैक्ट ठीक पड़ रहा है, उसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो दैट रिसर्च हैज ए वैल्यू। और आज की डेट में जितनी भी रिसर्च सपोर्टेड हो रही है, मतलब रिसर्च सपोर्ट जो है, रिसर्च सपोर्ट का मतलब वो ग्रांट्स वगैरह जो मिलती हैं गवर्नमेंट से, या गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट बॉडी जो ग्रांट देती है, वो सारी ग्रांट आपके एप्लीकेशन या इम्पैक्ट पे ही मिलती है। अगर उस रिसर्च का कोई इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आप जस्टिफाई नहीं कर पाए, तो यू विल नॉट गेट ए ग्रांट। यू विल गेट ग्रांट ओनली व्हेन यू show that the research has a greater impact on the society, has a greater impact, right, on a particular field of research. Then only you will be given a grant, right? So this is very important to decide how to initiate. Now, अच्छा, इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है कि अब आप फिर पीछे जाइए। Suppose you are just started your career as assistant professor or associate professor, and you have a task of doing research. So how do you initiate the research? What should be the baseline for the research to be initiated? You have just started your career in the college or in the university. So, and of course, your focus is doing quality work. So the very first thing to think of quality work, you have to have funds in your hand, right? अगर funds नहीं है आपके पास, तो you forget about the quality research. इनोवेटिव रिसर्च या नॉवल रिसर्च या इनोवेटिव रिसर्च तभी हो पाएगी
when you have funds in your hand. Funds means like grants from the government or non-government bodies. Getting grants from the non-government bodies is very rare. It's not so common, but getting grant from government bodies are very common. It's difficult, it's tough, but it's very common because government, different bodies of government, depending on the disciplines, they keep launching the grants schemes and different grant calls. For example, ICMR, DST, CSIR, ICMR, DBT, and then ICAR, right? And there are many more funding agencies, and similarly, arts and humanities में बहुत सारी funding agencies हैं, which can have this kind of. So if you have, I think if you have any questions, you please ask at the end, or if you want, you can ask in between. I have no problem. Somebody has raised the hand. So आप जो है वो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए सबसे पहले ग्रांट जनरेट करना होगा. नाउ द क्वेश्चन, ग्रांट कैसे जनरेट करेंगे? बहुत से लोग कहते हैं साहब ठीक है रिसर्च पीएचडी कराइए, एमफिल कराइए, और आप मास्टर्स प्रोजेक्ट कराइए, फंड्स हैं नहीं है, डजंट मैटर. देखिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ. यू जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ IITs, राइट? IITs में क्या है, क्वालिटी ऑफ रिसर्च अच्छी है. आप और आगे जाइए, ISC बेंगलोर, NCBS, मैं बायोलॉजिकल साइंसेस की बात कर रहा हूँ जिसमें बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री सब आ जाता है. आप ISC बेंगलोर की बात करिए, वन ऑफ द टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट? आप हार्वर्ड, MIT, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, येल, टेक्स, इनकी बात करिए, UCL इनकी बात करिए, लंदन कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक इनकी बात करिए, लंदन कॉलेज ऑफ हाइजीन्स इसकी बात करिए. दे आर वेरी टॉप 10, टॉप 20 वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस में नाम है इनका. क्यों क्वालिटी ज्यादा अच्छी है इनकी? मतलब किस वजह से क्वालिटी अच्छी है? क्वालिटी इज ओनली एंड ओनली बेस्ड ऑन रिसर्च एंड टीचिंग. देयर इज नो अदर पैरामीटर्स. रेस्ट ऑफ द थिंग इज ऑल सपोर्टिंग टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट. आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपकी फंडिंग हो, आपका रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टीज हो, दे ऑल आर लाइक अ सपोर्ट to give the good research as output and good teaching as an output. Good teaching का reflection जो है वो आपका placement पे होगा. अगर आपके कॉलेज के, अब आप मेजर कर लीजिए, just start from the top, Harvard, MIT, Oxford, Cambridge, and you come down to some of the Indian university institutions, private colleges, or even some government funded colleges. Now you see the range and difference. कहाँ नंबर 1, कहाँ नंबर 1200. So there's a difference, and this difference lies only. अब आप कहते हैं वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है. अरे इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों अच्छा है? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा इसलिए है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग है. हमारे पास फंडिंग नहीं है. यू डोंट हैव फंडिंग. आप किसी भी कॉलेज को उठा के देखिए, यू कैन नेम द कॉलेज एंड देयर इज अ क्राइसिस ऑफ फंडिंग. बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, टेबल नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, separate room नहीं है. I have visited many colleges in South and many colleges in Northeast, and I have seen even, मुझे लगता है UP and उत्तराखंड और आपका पंजाब, ये एरिया इसमें और बुरा हाल है, right? And I found many teachers, they are very highly qualified teachers. They are sitting in a small chambers and half like chambers. एक अलमीरा खड़ी है, कंप्यूटर रखा हुआ है. Many places even they are not given a desktop. Forget about the laptop. So how do you expect the quality? आपने उसको लोड इतना डाल दिया टीचिंग का, क्योंकि आपको 10 टीचर अपॉइंट करेंगे तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा. आपने 5 टीचर अपॉइंट किए हैं, उसको 10 टीचर का काम दे रहे हैं उसे. So you cannot maintain the quality. बहरहाल मैं ये these are demerits बता रहा हूँ. These are all things reflect your publication. अब एक आदमी जो IIT में है, they are having high quality publication. एक आदमी जो है वो AMU में है, BHU में है, JNU में है, जामिया में है, हमदर्द में है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में है, दे हैव अ लोअर क्वालिटी पेपर. एक बंदा और नीचे आ जाइए आप, और GLA में है, राइट, और आपका जो है वो मंगलेतन में है, और आपका
गलगोटिया में है, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से आप नाम ले लिए, वहाँ है, उसकी और क्वालिटी डाउन हो जाएगी। क्यों? रिसर्च पे फंडिंग का फोकस नहीं है। आवर कल्चर इज नॉट टू स्पेंड ऑन रिसर्च। डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटीज में पैसा आता है, डेवलपमेंट ग्रांट मिलती है, यूजीसी देती है, वो डेवलपमेंटल ग्रांट जो है वो आपकी, दे आर नॉट फोकस ऑन द रिसर्च, द ग्रांट इज फोकस्ड ऑन अदर प्रायोरिटीज। सो हमारी प्रायोरिटीज नहीं है। देखिए, ये सब मैं डीमेरिट्स बता रहा हूँ आपको, दीज आर फैक्ट्स। इट इज ऑल इम्पैक्टिंग ऑन योर पब्लिकेशन। पब्लिकेशन कोई ऐसा नहीं है आप रात में सोए सुबह क्वालिटी पब्लिकेशन बन जाएगा आपका। पब्लिक कोई, इट्स नॉट अ मैजिक कि साहब आपने सोए रात में, सुबह उठे आपका बेहतरीन पेपर रखा हुआ, आपका पब्लिश किया हुआ, ऐसा नहीं। लॉट ऑफ एफर्ट्स। सो मैंने पहले आपसे बात करी क्वालिटी क्या है, क्या करना है, कैसे छापना है, फिर मैं पीछे चल रहा हूँ, आई एम गोइंग बिहाइंड, व्हाट आर द फैक्टर्स, एंड क्यों मैं कह रहा हूँ। मैं देखिए, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबडी, नीदर आई एम क्रिटिसाइजिंग एनी यूनिवर्सिटी, नॉर आई एम क्रिटिसाइजिंग एनी कॉलेज, नॉर आई एम क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट और एनी फंडिंग बॉडीज। मैं बता रहा हूँ, फैक्ट्स बता रहा हूँ, विच आर फैक्ट, विच आर ओपन फैक्ट्स। नाउ व्हाट टू डू, यू हैव टू find the reasons of bad quality of publication. You have to find the reason of the disease that we are in. हमें जो डिजीज हो गई है, उस डिजीज का रीजन क्या है? हमारी डिजीज है कोविड-19। कोविड-19 से हमारे फेफड़े जो हैं वो खराब हो गए, our lungs are damaged, our health is damaged, we are having poor health, हमारी लाइफ इज एट स्टेक, quality is down. How to improve quality? How to become strong with good lungs, good oxygen saturation, good healthy person? What are the factors for COVID-19? SARS-CoV-2 is a factor. हम सब जानते हैं, अभी 2-3-4 साल पहले वायरस, हमें उस वायरस को खत्म करना होगा। वी हैव टू किल दैट वायरस। अब कैसे करना है ये सोचना है। वी हैव टू मेक ए वैक्सीन, वी हैव टू डेवलप अ ड्रग। वायरस खत्म हुआ तो डिजीज खत्म हुई, डिजीज खत्म हुई तो हमारी हेल्थ सही हो गई। इसी तरह हमारी पब्लिकेशन, हम पुअर हैं, पब्लिकेशन की डिजीज, वी आर डिजीज्ड, हैविंग डिजीज ऑफ बैड क्वालिटी पब्लिकेशन। इसके फैक्टर्स पता करना है हमें, चैनल क्या है, देन यू हैव टू ट्राई टू रेक्टिफाई दीज चैनल्स। तो हमने ग्रांट्स यूटिलाइज, हमारे ईयर मार्क नहीं है। अब देखिए, गवर्नमेंट ने भी रिसर्च पे ग्रांट कम कर दी, बिकॉज द प्रायोरिटी इज नॉट रिसर्च, फंडिंग इज डाउन। When the funding is down, it will impact the whole research, quality research publication, quality thesis publication. अब यूजीसी का चेयरमैन कहता है कि पीएचडी करो तो क्वालिटी पीएचडी करो, राइट? दे आर पुटिंग अ पोस्ट ऑन द लिंक्डइन, ट्विटर, और ऑल सोशल मीडिया, right? Everybody is very happy, say very correct, sir, you are saying very true, but it is not a solution. Being head, I have commented on that. Until unless you generate a funds for the universities from UGC, don't expect any quality PhD. खाली बड़ी बड़ी बातें कर लेना कि साहब हम ये करेंगे, क्वालिटी पीएचडी कराएंगे, क्वालिटी पब्लिकेशन करिए आप, और ये होना चाहिए और जियो होना चाहिए, हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमें प्राइमरी लेवल पे फंडिंग को फोकस करना होगा रिसर्च में। अगर मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, आप आईआईटीज देख लीजिए और यूनिवर्सिटी देख लीजिए, वेरी सिंपल एग्जांपल। आईआईटीज में फंड बहुत ज्यादा है, आईआईटीज की रिसर्च पब्लिकेशन, पीएचडी क्वालिटी सब बढ़िया है, हर आदमी चाहता है मैं आईआईटी चला जाऊं, है ना? मैं बाहर की बात नहीं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। और हमारी यूनिवर्सिटीज में क्या है, वैसे ही नहीं है। चाहे आप जेएनयू में, टॉप यूनिवर्सिटी है, जेएनयू नंबर 1 यूनिवर्सिटी, एनआईआरएफ में भी टॉप। जेएनयू में आई नो, very administrators in JNU, authorities in JNU. I'm in touch with many committees in JNU. They are selling their properties. They are giving the properties on rent to generate funds. For what? For run the university. Imagine.
what are the crises we are facing in. So my friends, it is very very important to find out the solution. Just to talk on a lectures and getting, देखिए एफडीपी प्रोग्राम में खाली सर्टिफिकेट लेके चले जाना मेरे हिसाब से पर्पस नहीं है. आई डोंट बिलीव दैट अटेंडेंस लगा के एफडीपी प्रोग्राम करके आपने प्रमोशन लिए, डज नॉट मेक सेंस. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, मैं जो समझता हूं, यू शुड टेक दिस मैसेज ऑनवर्ड एंड टू फोकस ऑन, हमें पूरे देश की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है. आवर पर्पस, देखिए एक एक कतरे से पूरी नदी दरिया बढ़ती है, नहीं बढ़ती है. अब आप कहें साहब एक कतरे से क्या होगा, हम तो नहीं डाल रहे, दूसरा डाल देगा. अब हर आदमी सोच जाएगा तो दरिया खाली पड़ी रहेगी. हर इंसान को, हर बंदे को, हर एकेडमिशियन को, हर रिसर्चर को, हर टीचर को, हर फैकल्टी को जो गवर्नमेंट से सैलरी ले रहा है, not for promotion purpose but to protect our country, हमें अपने इनपुट को देना है. इनपुट कैसे देना है? You have to find the factors which are in hindrance with our input generation. जो इनपुट जनरेट करने में जो हिंड्रेंस आ रही है, उन फैक्टर्स को हमें एलिमिनेट करना है. एंड द फर्स्ट फैक्टर इज द फंडिंग, लैक ऑफ फंडिंग. हमें लैक ऑफ फंडिंग को एलिमिनेट करके फंडिंग को इंप्रूव करना है. कैसे फंडिंग इंप्रूव होगी? Government has provided, although government has not given the full research fund to any university, any college, I know. Whatever funds are coming to infrastructure development, to building development, for the teacher salaries and for blah 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 blah. Research के नाम पे बहुत थोड़ा आता है. हमें अपने एक्स्ट्रा म्यूरल EMR, नोट कर लें, EMR एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च प्रोजेक्ट को स्ट्रेंथन करना होगा. आप कहेंगे साहब वो गवर्नमेंट ग्रांट भी कम कर दी उसने, 8% कर दी है. ठीक है, कोई बात नहीं. सर्कुलेशन में हर साइकिल में ग्रांट आती हैं. फर्स्ट साइकिल आई, 1000 लोगों ने अप्लाई किया, 100 लोगों को ग्रांट मिल गई. 6 महीने बाद फिर कॉल आ गई, 1 साल बाद फिर कॉल आ गई, फिर आप फिर 1000 लोगों ने भरा. अब जो पहले जिनको 100 को मिली हुई थी वो नहीं भरेंगे, या भरेंगे तो उन्हें नहीं मिलेगा, अगलों को मिल जाएगा. चलिए 100 को नहीं तो 50 को और मिल जाएगा. Likewise, you try to improve your extramural funding generation. आप साल में 10 ग्रांट सबमिट करिए, एक मिलेगी 100%. क्राइसिस का जमाना है कि मैं अपनी सेल्फ प्रेज नहीं कर रहा, बट मैं अपनी तारीफ कर रहा, लेकिन मैं जस्ट टू इंस्पायर यू, आई एम लाइक ए वेरी सिंपल काइंड ऑफ ए टीचर. यूनिवर्सिटी टीचर हूँ मैं, AMU में. कोई बहुत बड़ा प्रोफाइल मैंने है मेरा कि गवर्नमेंट में मेरे बहुत कनेक्शन हो, नेता हूँ, ये हूँ, और लो प्रोफाइल प्रोफेसर हूँ. आई हैव गॉट, मेरे पास अभी आज की डेट में 5 प्रोजेक्ट्स हैं. 3 DBT के हैं, एक ICMR का है, एक डायरेक्ट बिग ग्रांट है, एक इंटरनेशनल ग्रांट है. 6. इतना फंड है कि समटाइम मुझे यूटिलाइज करने में परेशानी थी, मैं कैसे सबको यूटिलाइज करूं फंड को सारा. हालांकि मैं वापस नहीं जाने देता, यूटिलाइज एवरीथिंग इन माय लैब. सो माय कंसर्न इज दैट आप ऐसा मत समझिए कि हम कुछ खास बन जाएंगे तभी हमें फंड मिलेगा. एवरीबडी कैन फेच द फंड. फंड रिसीव करने के लिए व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, आई कैन ऑल्सो गिव ए टॉक ऑन द फंड जनरेशन समटाइम इफ आई गॉट चांस, बट अभी तो टाइम नहीं है इतना कि मैं उस पर बात करूं. लेकिन फंडिंग जो है वो जनरेट करना एक आर्ट है, और कोई मुश्किल आर्ट नहीं है, बहुत सिंपल आर्ट है. 2 + 2 = 4, बस ये है. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ उसमें 3-5 कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है. आपको अपना, भाई देखिए, आप किसी से कोई चीज मांगते हैं तो आपके माइंड में चीज क्लियर होती है क्या मांगने में जा रहा हूँ. आप अपने दोस्त के पास गए, भाई मुझे यार जरा आज मुझे अपनी गाड़ी दे दो यार, मेरी गाड़ी में पंचर हो गया है, मुझे जाना है, जरा शहर जाना है. तो आप जब दोस्त के घर जाके नॉक करोगे, बेल बजाओगे, तो आपके दिमाग में क्या होगा? आपके दिमाग में ये होगा साहब मैं बुलंदशहर जा रहा हूँ आज, या मैं जो हूँ मैं कहीं और, कुछ और चीज दिमाग में होगी नहीं. आपके दिमाग में ये होगा कि मुझे जैसे ही वो दरवाजा खोलेगा मैं बैठूंगा उसके पास 2 मिनट, कहूंगा मुझे गाड़ी की चाबी दे दो, मुझे अभी जाना पड़ा. आपका ऑब्जेक्टिव गाड़ी की चाबी लेना थी, आपने गाड़ी की चाबी ली, विच इज कॉल्ड मेथोडोलॉजी, और आपको गाड़ी की चाबी मिल गई, ये आपका आउटपुट हुआ.
और आपने गाड़ी लेके आप अपना काम कर लिया, ये आपका डिलीवरेबल हो गया, दैट्स इट, दैट्स व्हाट द प्रोजेक्ट इज। आपने ये पता ही नहीं है कि आपको प्रोजेक्ट में मांगना क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। आई रिव्यूड मेनी प्रोजेक्ट्स डीएसटी डीबीटी के, तो मैं देखता हूँ जिस तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं उसमें बहुत से प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट होने का रीजन है कि उसमें ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं होता, आपको करना क्या है। अच्छा, वो कैसे पता चलेगा ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है? अब जैसे मान ली मैंने एग्जाम्पल दी, बहुत सिंपल एग्जाम्पल, आपने ऑब्जेक्टिव ये मुझे चाबी लेना है, ठीक है। अब आप गए वहां और आपकी मेथोडोलॉजी होना चाहिए कि आप घर जाइए, बेल दबाइए और चाबी ले लीजिए। अब आपने मेथोडोलॉजी डिफाइन क्या करी, आपने चाबी लेना है, लेकिन आपने डिफाइन करी मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठ के चाय पी रहा हूँ, और ऑब्जेक्टिव ये कि मैं अपने दोस्त से चाबी लूंगा, चाबी मिल जाएगी आपको, बताइए मुझे। बहुत बहुत क्रूड एग्जाम्पल है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। मिल जाएगी चाबी? नहीं मिलेगी ना, आपकी मेथोडोलॉजी गलत है, अप्रोच गलत है। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अप्रोच है, मेथोडोलॉजी इन लाइन विद ऑब्जेक्टिव है, कोई दुनिया की ताकत, पावर आपके प्रोजेक्ट को रोक नहीं सकती। देखिए ऐसा ना, वहाँ कोई कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। ये गलत बात है साहब, लोग कहते हैं साहब ये डिस्क्रिमिनेशन प्रोजेक्ट में होता है, और फना को नहीं देंगे, और फना को नहीं देंगे, फना कॉलेज है उसको नहीं देंगे, और वो कॉलेज है वो छोटा कॉलेज है, वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। साइंटिफिक कम्युनिटी बैठी होती है वहाँ, साइंटिफिक कम्युनिटी सिर्फ वर्क देखती है, और एक इथिकल रिक्वायरमेंट है, एक मोरल वैल्यूज होती हैं उनकी, वो ही नहीं देखते साहब ये इनको मिलना चाहिए, उनको नहीं मिलना चाहिए। भाई चलिए ठीक है, एक दफे नहीं मिला, आप सेकंड टाइम अटेम्प्ट करिए, थर्ड टाइम करिए, है ना। लेकिन ये कि आप ये सोचें ग्रांट मिलेगी नहीं हम, तो कभी नहीं मिलेगी। दादा, माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू इज दैट, अगेन आई एम कमिंग टू द सेम पॉइंट, because my topic is a quality publication, so I will not deviate my topic. Quality publication के लिए you have to have a grant in your hand, you have to generate money. How to generate money? That you have to find out. To have to block all the hindrance that you have in your route, in your path, or in your journey from starting to end of your publication. जितने भी पाथ पे आपके हिंड्रेंस आ रही है, that has to be, जैसे आपने काम स्टार्ट किया है, आपको 10 केमिकल की जरूरत है, आपको पैसा ही नहीं है, आप कहाँ से लेंगे केमिकल? These are hurdles. इन hurdles को रिमूव करना होगा to generate money. And if you won't be able to generate money, then you can't do it. So वो तो बहुत बात की चीज है, क्वालिटी की हम बात बाद में करेंगे, पहले हम फंड रेज करने की बात करें, इंडिविजुअल फंड। एक मैं मंत्र आपको बता दूं प्रोजेक्ट लेने का, कोलैबोरेशन आज की डेट में इज द बेस्ट मंत्र। मान लीजिए आप अकेले लिखेंगे, नहीं मिलेगा, आपने किसी आईआईटी के प्रोफेसर को इन्वॉल्व कर लिया, आपने किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को इन्वॉल्व कर लिया, आपने किसी और कॉलेज के 2-3 लोगों को मिल, जहां मल्टी सेंटर, मल्टी इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेटिव 2-3 लोग मिलके काम कर रहे हैं, एक्सपर्टाइज ले रहे हैं, वहां प्रोजेक्ट आसानी से मिल रहे हैं। एंड इसीलिए डीबीटी और डीएसटी आईसीएमआर ने मैंडेटरी कर दिया है, बगैर को पीआई के आप प्रोजेक्ट सबमिट ही नहीं कर सकते। एटलीस्ट डीएसटी डीबीटी में तो कभी नहीं कर सकते। यू आई थिंक आईसीएमआर इज आल्सो, यू हैव टू हैव मेक, चाहे वो डमी आप को पीआई बनाइए, बट देयर शुड बी को पीआई। सो देयरफॉर यू ट्राई टू मेक अ टीम वर्क and try to generate good funds, and also generate good infrastructure through various SAP, UGC SAP, then we have a FIST program in science and technology, DST PERS program, DBT Builder program, there are many programs. So try to fetch these grants to generate funds. देखिए यूनिवर्सिटी कॉलेज के ऊपर मत बैठिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज आपको सैलरी दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, वरना पता है सैलरी भी हमारी, तो सैलरी एक दफे, एक महीने सैलरी नहीं आई, एक महीने के दूसरा महीना स्टार्ट हो गया, उसके एक हफ्ते बाद सैलरी आई, हम लोग सब परेशान, भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सैलरी रुक गई हमारी, इट हैपेंड फर्स्ट टाइम। सो आई मीन दिस इज, आसान है, हमें सैलरी मिल रही है, लेकिन आप नेवर वेट, डोंट वेट कि साहब हमें गवर्नमेंट या सैलरी या हमें जो है हमारा कॉलेज या हमारा इंस्टीट्यूशन हमें पैसा देगा। नेवर नेवर, दे दे तो समझिए वो ओवर एंड अबव है। ट्राई टू जनरेट योर ओन फंड्स, ट्राई टू कोलैबोरेट, try to find the associated workers, those who can support you in order to get your things done, like outsourcing, or in order to collaborate with some ideas to partially work done in one place, a second place and third place, and jointly you can publish. So these are some mantras, some criteria, and some protocol which can be followed, and based on that you can think of quality publications. And
थिंक ऑफ गुड पेपर्स एंड आउटकम। देखिए जब तक क्वालिटी पब्लिकेशन नहीं है, छोटे पब्लिकेशन की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि एपीआई ने हमारी क्वालिटी डाउन कर दी है। आई डोंट बिलीव, आई एम द फर्स्ट पर्सन इन 2012 or 13, I don't remember, or 9, I don't, API कब आया था मुझे ये भी याद नहीं रहा। API जब इम्प्लीमेंट हुआ था यूजीसी से, तो उसके बाद मैं आई वाज द फर्स्ट पर्सन हु रोट इन करंट साइंस, जो बेंगलोर से निकलता है जर्नल, इंडियन अच्छा जर्नल है मैगजीन, तो उसको मैंने करंट्स, क्योंकि इंडियन इशू था तो मैं आई हैव रेज इन इंडियन, आई एम द फर्स्ट पर्सन हु कंडेम द एपीआई, एंड दिस इज डॉक्यूमेंटेड, मैं मुंह से नहीं कह रहा, इट्स डॉक्यूमेंटेड, आप सर्च कर लीजिए मेरे नाम से करंट साइंस में एपीआई के ऊपर। आई हैव द फर्स्ट पर्सन हु कंडेम द एपीआई एंड देयर ड्रॉबैक्स क्या है एपीआई के। एपीआई से आपकी क्वालिटी डाउन होना है, राइट, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप यूनिवर्सिटीज में हो। एंड बेसिकली एपीआई, मैं कॉलेजेस, हाई बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में ये बात कहता हूँ कि एपीआई स्कोर इज फिट इन दोज कॉलेजेस विच थ्रू विच यू डोंट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ हाई क्वालिटी रिसर्च। लेकिन अगर कॉलेजेस के टीचर्स को भी हाई क्वालिटी रिसर्च में जाना है, जैसे कि जाना चाहिए, एज वन ऑफ द एंटिटी, वन ऑफ द member of the country, as one of the researcher and academician of the country, to give the input to the country and raise in the development, science and technology, then you must go. And uske liye you have to generate funds. No research is possible without funding. No good publication is possible without funding, right? Forget about the paid journals and paid journals. That's the secondary thing, tertiary thing. First, focus on your research, which can be in position that to proceed for further publication. और एपीआई पे आप प्लीज डोंट फोकस ऑन एपीआई। एपीआई मिनिमम स्कोर एपीआई इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोफेसर इज, आई डोंट नो 300 400 कितना है, मुझे भी याद नहीं, ठीक है। लेकिन जब मैंने एपीआई अपना भरा था प्रोफेसर के लिए, तो मेरा करीब 1400 स्कोर था, एपीआई स्कोर 1400। बहुत सारे फैक्टर तो कट गए थे उसमें से, पढ़ाओ इसे यार, इसकी जरूरत ही नहीं बार बार देने की। तो कहने का ये कि आप अपने फोकस करिए, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाइए, अपने अपने लेवल को, बेंचमार्क को बढ़ाइए। You should have your own benchmark, and everybody can set their own. I don't have my benchmark as to compete with my colleagues in my department. I have my benchmark to have my peers in Oxford, MIT and Harvard. I compete with them. जब आप ऊपर compete करेंगे तो आपकी रेस बढ़ जाएगी, आपकी दौड़ बढ़ेगी, जब दौड़ बढ़ेगी तो क्वालिटी बढ़ेगी। So the main mantra is your passion for quality development, as well as to raise funds and have set your benchmark. Please, मैं सबसे ही कहता हूँ, डोंट हैव योर बेंचमार्क, सर एपीआई में 300 स्कोर हो जाए हमारा प्रोफेसर हो जाएंगे, 200 स्कोर हो जाए एसोसिएट हो जाएंगे, असिस्टेंट हो जाएंगे, एंड उसका फिर प्रोफेसर हो गया, फिर आप कुछ काम नहीं करना है। अरे वी हैव टू कीप वर्किंग टिल आवर डेथ, लाइफ लॉन्ग काम करना है। वी हैव टू वंस, देखिए जब हमें कंट्री ने एक साइंटिस्ट, एक एकेडमिशियन, एक यूनिवर्सिटी टीचर रिकॉग्नाइज कर लिया, तो हमें आखिर वक्त तक काम करना है, इवन रिटायरमेंट के बाद भी काम करना है। There are many scientists, I can name you so many scientists, those who are, I know the Professor TP Singh in AIMS, many of you might know him, Rakesh Bhatnagar in JNU, right? Then you have Anil Tripathi, to abhi hain, or you can have like Faizan, Professor Faizan, Ehtiyam Hasnain, one of the top scientists. You can name, I can use so many scientists, those who have retired, long back retired, age of 70 plus, 80, even touching 80. GB Talwar, 96-year-old, who was a founder of an NII center, and he's still working. He's working. I'm in touch with him. I invited once in our university in one function as a chief guest. At that time, he was 93 years old, and he came on the stage. 1 hour he talked on vaccines. So, thing is that it's your passion for quality publications is one of the things, but overall quality research is very important. For that, you need funds, and you have to set your, my last message and my take home message is that raising funds and setting your benchmark, that is the primary thing to think of publications, of quality publication.
अदरवाइज यू कैन, अगर आप एपीआई के पीछे पड़े रहेंगे तो एपीआई तो आपको बिल्कुल तबाह कर देगा, एपीआई आपको बिल्कुल डिटोरिएट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, साइंस डिस्ट्रॉय कर देगा. एपीआई इज टोटली डिस्ट्रॉइंग साइंस. आई कैन गिव यू so many examples. Because of API, people are writing a one-page paper and publishing here and there and got 30 points, 20 points as a single author. But doing good research, you need to have a teamwork. When you have a teamwork, you have like a 10, 15, 16, 17 paper name. You got 2 marks. मैं अपने पेपर की एग्जाम्पल देता हूँ. One of the paper I published in my postdoc having impact of 22 was very high profile journal in genes and development. All kind of technology being carried out in this work and develop a very new invention in that paper we publish. But at least 10 authors in this paper from different country, different labs. And जब API स्कोर हुआ तो मुझे इसमें 2 नंबर मिले. Can you imagine? And फिर मैंने एक आर्टिकल लिखा जिस आर्टिकल में सिंगल ऑथर था, मैं 2 पेज का सिर्फ रिव्यू आर्टिकल था, कमेंट्री थी, उसमें जो है वो 35 नंबर मिल गया. Why should I go for the big paper, high, good effort, high public, spending a lot of money and time and effort. 2-3 years के बाद वो पेपर आया था, उसमें मुझे 2 नंबर दिए एपीआई ने, इसने मुझे 35 नंबर दे दिए जो 2 घंटे बैठ के मैंने लिख दिया. I can write 10 papers every month, 20 papers every month. Please try to understand this is a real problem of deteriorating science in our country. If we remove API and set a benchmark, accordingly your institutions and your colleges will be raised. मान ली मैं किसी कॉलेज का हेड हूं तो आई हैव पुट अ बेंचमार्क. जब तक ये हम अटेन नहीं करेंगे, आई विल नॉट प्रमोट एनीबॉडी. I mean, this is harsh, but there's no other way if you want to talk about the quality. Otherwise, forget about the quality. Just आप जैसे चल रहा है वैसे चलिए, जहां छापना है छापिए, एपीआई स्कोर बढ़ाइए, प्रोफेसर होइए, रिटायर होइए, ऐश करिए. There's no other way. This is all done from my side. If you have any question, any criticism, or any comment on my talk, you are most welcome. अफजल, अभी बात करता हूँ, बात करता हूँ क्लास के बारे में. I just talking. Yes, you have I think some 10-15 minutes, please. अस्सलाम वालेकुम सर. वाइसम. सर मैं ये पूछना चाहती थी, जब भी हम रिसर्च पेपर लिखते हैं तो एक कंफ्यूजन रहता है कि पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखें या पूरा पेपर लिखें, पेपर लिखने के बाद एब्स्ट्रैक्ट लिखें या एब्स्ट्रैक्ट लिख के पेपर लिखें. देखिए ऐसा है ना, एब्स्ट्रैक्ट तो बाद में लिखा जाएगा, बाद में. ठीक है. हाँ, पहले तो आपका देखिए, सबसे पहले ब्रेन में एक आइडिया डेवलप होता है. उस आइडिया के ऊपर पूरी स्टोरी बनती है. वो स्टोरी अगर आप साइंस स्ट्रीम में है तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव की जाती है, ठीक है ना. आप किस फील्ड में हैं? सर सोशल साइंस, सोशियोलॉजी. ठीक है. आपने कोई स्टडी की, कोई केस स्टडी की सोसाइटी पे, किसी पे, है ना, सोशल वर्क वगैरह पे, तो आपने पहले क्राइटेरिया बनाया, उसके बाद आपने पूरा उसको स्टडी किया. अभी मैं कॉल करता हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ ना, आपने उसको क्राइटेरिया किया, उसके बाद आपने क्या किया, फिर आपने उसको स्टडी के बाद आपने उसका पूरा स्टोरी बना के लिख दिया उसको. अब आपने पूरी स्टोरी आपके पास है. अब आपने उस स्टोरी में से एब्स्ट्रैक्ट बनाया कि मेन पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है. मेन पॉइंट्स को आपने 1 पेज का, हाफ पेज का, या 200 वर्ड का, या 300 वर्ड का, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट इज ऑलवेज रिटन आफ्टर यू रिटन द होल पेपर. एब्स्ट्रैक्ट आप पहले लिख ही नहीं सकते. कैसे लिखेंगे आप एब्स्ट्रैक्ट? तो किसी चीज की समरी होती है ना, तो जिस चीज की समरी होगी वो चीज पहले आएगी. करेक्ट. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर. या अगर आपकी पूरी समरी आपके दिमाग में पूरी चीज है तो उसको आप एक शॉर्ट में लिख सकती हैं. जैसे कभी कभी होता है, जैसे आपको किसी कॉन्फ्रेंस में सबमिट करना है, पेपर आपका नहीं छपा है, पेपर आपने नहीं पब्लिश किया है, पेपर आपने नहीं लिखा है, देन यू हैव टू सबमिट अ एब्स्ट्रैक्ट. तो उसको आपकी पूरी स्टोरी दिमाग में बना के आप उसका एक एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं. वो भी कोई इशू नहीं, मतलब कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं कि पहले लिखें या बाद में लिखें. बट एब्स्ट्रैक्ट इज अ पार्ट, बट एब्स्ट्रैक्ट इज बेसिकली व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट. एब्स्ट्रैक्ट इज अ समरी ऑफ द होल वर्क दैट यू हैव डन. जी, ठीक है ना. ओके. यस, एनीथिंग एल्स?
अस्सलाम सर। सर गुड आफ्टरनून सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि Good afternoon. अभी आप कह रहे हैं सर एब्स्ट्रैक्ट इज ए समरी ऑफ ऑल द स्टोरी, ऑल द वर्क, देन व्हाट अबाउट कंक्लूजन सर? कंक्लूजन में सर हम वही चीजें लिखते हैं सर जो ऑलमोस्ट नहीं, yeah, this is good question. Conclusion is the based on your objective. Objective का जो आउटपुट निकला है, रिजल्ट्स का जो आउटपुट है वो कंक्लूजन होता है। एब्स्ट्रैक्ट्स के अंदर आप पूरी स्टूडेंट में, जैसे साइंस की अगर आप बात करते हैं, साइंस में, हाँ, साइंस में जैसे आपका 1-2 लाइन का बैकग्राउंड होता है, उसके बाद आपका मेथोडोलॉजी क्या यूज करिए उसको आप डिफाइन करेंगे एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, किस मेथड से आपने वो कंक्लूजन निकाला है, फिर आप रिजल्ट्स बनाएंगे, रिजल्ट्स क्या क्या आए हैं आपके, फिर आप आखिर में आएंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन तो सिर्फ एग्जैक्टली आउटपुट होता है आपका, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसका फाइनल वो होता है। एब्स्ट्रैक्ट इज नॉट अ कंक्लूजन, एब्स्ट्रैक्ट इज द होल। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आपका मटेरियल मेथड, रिजल्ट्स, प्रोटोकॉल, सिनॉप्सिस एंड एवरीथिंग शुड कम इन एब्स्ट्रैक्ट इन वन पेज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यस, इसने लता प्लीज। Sir, good afternoon, sir. I want to ask a question. There is a lot of confusion between peer-reviewed journals and referred journals. So, what's the basic difference between both and impact factor? What is this? देखिए, मैंने फिर है ना, ये this is a good question. I mean, peer-reviewed journal is always important. देखिए, मैं उसकी एक बहुत ही बड़ी एग्जांपल देता हूँ आपको peer-reviewed journal की और उसके परसेप्शन की। peer-reviewed का मतलब होता है कि आपका जर्नल रिव्यू, वैसे 90% जर्नल्स आर peer-reviewed, वो रिव्यू हुआ है। PNAS एक जर्नल है हम लोग की साइंस फील्ड में, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज के लोग भी छापते हैं किसी ना किसी। ये यूएस का जर्नल है, प्रोसीडिंग्स ऑफ यूएस एकेडमी ऑफ नेशनल साइंस, नेशनल एकेडमी ऑफ यूएस साइंस, यूएसए का PNAS। इस PNAS में इम्पैक्ट तो 10, 11, 12 इम्पैक्ट है, बट द वेरी हाई प्रोफाइल जर्नल माना जाता है। मतलब PNAS में फीचर पेपर साइंस में हमारी तो बहुत बड़ी चीज है। PNAS में 2 कैटेगरी है पेपर की। एक कैटेगरी है पीयर रिव्यूड जर्नल्स, मतलब उसमें आपने रैंडम आप पेपर भेजते हैं, वो पीयर रिव्यू होता है ब्लाइंडली और वो आपका छपता है। दूसरा कैटेगरी उसमें है जो कम्युनिकेटेड पेपर कहलाता है, जो एडिटर मेंबर होता है वो कम्युनिकेट करता है। मानिए से मैं मेंबर हूं, आपने पेपर भेजा, मैंने कम्युनिकेट कर दिया, तो वो पेपर पब्लिश होना ही होना है, चाहे वो 10 दफे रिव्यू कराएं, कुछ करें, वो रिव्यू ही, मतलब पेपर एक्सेप्ट ही होना है वो। तो इसलिए पीयर रिव्यूड, जो ओपन पीयर रिव्यूड पेपर होते हैं, उनकी वैल्यू PNAS में ज्यादा है। जो पेपर्स कम्युनिकेटेड माने जाते हैं, इसमें वो लिखा होता है कम्युनिकेटेड बाय XYZ, कम्युनिकेटेड बाय दिस एडिटर, जब वो पेपर सामने आता है किसी के, तो जो बंदा एक्सपर्ट होता है कहता है अच्छा यार कम्युनिकेटेड है, वो ऐसे कहता है अच्छा ये कम्युनिकेटेड है। इट मीन्स कि वो कम्युनिकेटेड की ठीक है, मतलब जाहिर है वो बड़ा आदमी है, मेंबर है, उसने कम्युनिकेट किया, पेपर छप गया, बहुत सारे लैक्यून नहीं होंगे, वो छुप गए होंगे उसमें। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द पीयर रिव्यू पेपर्स। सो जो पीयर रिव्यू होगा वो एक्सपर्ट उस फील्ड में उसको रिव्यू करेगा साइंटिफिकली, एंड देन देखिए बहुत सी जर्नल्स होते हैं जो डबल रिव्यू कराते हैं। उसने एक रिव्यूअर को भेजा, पेपर रिवाइज हो गया है, फिर उस दोबारा वो उस कमेंट्स को दूसरे रिव्यूअर को भेजते हैं जस्ट टू ऑथेंटिकेट इट। करेक्ट? सो दिस इज व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम इज देयर इन जर्नल्स। सो उन जर्नल्स की वैल्यू ज्यादा होती है। Yes, any other question? जी सर। यस सर, सैंक्यू रोहिला हियर। हाँ बताइए सर मैं ये कह रहा हूँ, अभी आप सर कह रहे थे कि अगर आपको अपना अच्छा, एक तो आपको कम से कम अपने एक ग्रुप में काम करना चाहिए और अच्छी जगह पब्लिश कराना चाहिए, तो कोई IIT के प्रोफेसर या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होना चाहिए। तो सर अगर मान लीजिए कोई मैं काम करता हूँ, तो मैं सर उनसे कांटेक्ट किस तरह करूँ सर? जैसे कि मेल करके कर सकते हैं क्या? देखिए, पहली चीज तो मैं आपकी करेक्ट कर दूं कि अगर आपको पब्लिश कराना है तो आप IIT के प्रोफेसर या XYZ से पब्लिश कराएं, ऐसा नहीं है। कोई प्रोफेसर, आप मुझसे, अगर आप जैसे बायोटेक्नोलॉजी फील्ड के हैं, आपने पेपर लिखा और पेपर लिख के आपने भेजा, भाई प्रोफेसर असद, आई वांट दिस पेपर टू बी पब्लिश एंड आई वांट टू पुट योर नेम, तो मैं उसको फौरन रिप्लाई करूंगा, थैंक यू मिस्टर रोहिला, डॉक्टर रोहिला, एंड I'll not be happy to have my name in your paper, although I'll try to review your paper, I'll give you some comments. मैं एक जेस्चर कहूंगा, ठीक है भाई आप एक एकेडमिशियन ने पेपर भेजा, मैं उसको रिव्यू करूंगा, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा उसमें। उसकी वजह यह है कि जिस पेपर में मैंने काम नहीं किया, जिस चीज में मैंने काम नहीं किया, उसको नाम देना अनएथिकल है, टोटली बियॉन्ड द एथिक्स। लिहाजा आप कोलैबोरेट करिए। आप कहेंगे नहीं सर मैं आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहता हूँ इस फील्ड में, तो मैं फिर सोचूंगा ठीक है मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, फिर मैं कोलैबोरेट करूंगा,
कुछ काम मैं करूंगा, कुछ आप करेंगे, कुछ मैं करूंगा, कुछ आप करोगे, फिर पेपर बनेगा, फिर कंट्रीब्यूशन के हिसाब से पेपर में नाम दिए जाएंगे, फिर वो पेपर जाएगा। ये होता है कोलैबोरेशन होता है। ये नहीं कि आपने पेपर लिख लिया फिर आपने कॉल किया। नहीं सर, मेरा वही कहने का मतलब था, जैसे अगर मैं किसी से मतलब काम करना चाहता हूँ तो मैं मेल के थ्रू उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं ना सर? ऑब्वियसली मेल। तो देखिए उसका तरीका ये है कि मेल आपको भेजना होगा और एक प्रपोजल बना के भेजना होगा, बिकॉज अदरवाइज इफ यू डोंट हैव एनी प्रपोजल देन वो फिर समझ नहीं पाएगा आप क्या काम करना चाह रहे हैं। आप एक बढ़िया सा ओके, हाँ सर, बस यही क्वेश्चन था मेरा, मतलब पूछने का कि मतलब अगर किसी के साथ और हाँ, लेट्स सी हिज और हर रिस्पांस के, इफ ही इज पॉजिटिव देन वेल यू कैन कंटिन्यू। यस, फहीमुद्दीन साहब बताइए। जी सर, हाँ स्टार्ट सर सर। बताइए। सर मैं उर्दू लिटरेचर से संबंधित जी ताल्लुक रखता हूँ। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे जो एब्स्ट्रैक्ट के बाद वो जो कलीदी अल्फाज भी लिखवाते हैं, कोई मैगजीन है उसमें, राइट। जो कीवर्ड्स हैं उनको किस तरह से इंतखाब करना चाहिए? देखिए कीवर्ड्स वो होना चाहिए, कीवर्ड्स जो हैं वो जो आपके पूरे टॉपिक को कवर कर लें जी। हाँ, जैसे मान लिया क्योंकि कीवर्ड से ही चीजें सर्च होती हैं। मान लिया आपने कीवर्ड आपने लिखा, किसी टॉपिक पे लिखा, उस टॉपिक पे आपने जैसे कीवर्ड दिया, मान लिया अल्लामा इकबाल के सवाने हयात पे आपने कुछ चीज लिखी जी, है ना, तो कीवर्ड मेरे हिसाब से उसमें ये होगा कि एक तो अल्लामा इकबाल का नाम होगा कीवर्ड, दूसरा सवाने हयात हो गया उसमें। अब उसमें अंदर क्या क्या चीजें हैं वो सब उसमें आ जाएगा। तो कीवर्ड्स का मतलब होता है कीवर्ड इज बेसिकली द वेरी एक्सट्रैक्टेड वर्ड्स विच कैन कवर द मेजॉरिटी ऑफ द आर्टिकल, या जिसने बहुत सारी चीजों को कवर किया हो। जैसे मैं काम करता हूँ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे काम करता हूँ, तो मेरे पेपर का सारा फोकस AMR या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे होता है। तो मेरा पहला जो कीवर्ड होता है वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ही होता है उसमें। जैसे बंदा AMR डालेगा वो फट से मेरा पेपर आ जाएगा। तो उससे क्या हो ना, पेपर साइटेशन बढ़ते हैं, पेपर की पब्लिसिटी बढ़ेगी, पेपर का रीडरशिप बढ़ेगी, पेपर की विजिबिलिटी बढ़ेगी। जी, क्योंकि आपके नाम हो सकता है कोई ना जानता हो कि साहब फहीमुद्दीन कौन है, लेकिन ये क्या उसको वो सब्जेक्ट में काम करना है, उसने वो डाला, फट से उसमें आपका पेपर आ गया, अच्छा, तो आपको भी लोग जाने लगे। तो बेसिकली कीवर्ड्स बहुत कन्फाइंड, जरा 2-3-4 कीवर्ड देना होते हैं। हमारे फील्ड में तो मैक्सिमम 5-6 कीवर्ड देते हैं। दैट कीवर्ड शुड कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ द आर्टिकल, दैट इज द मेन। हाँ जितेंद्र सर कुमार, एक सवाल और था मेरा, सर एक हाँ सवाल। बताइए। हाँ सर, जैसे मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ, मेरा PhD चल रही है, तो उसमें हम 2 आर्टिकल उन्होंने हमसे मांगे हैं कि आपके 2 आर्टिकल होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों ही UGC के लिस्टेड में होना चाहिए या एक पीयर रिव्यूड में हो सकता है? देखिए UGC का जो रूल है, जो यूनिवर्सिटीज वगैरह में अडॉप्ट किए हैं, वो तो आपका एक आर्टिकल होना चाहिए जो पब्लिश होना चाहिए। मतलब UGC केयर में एक आर्टिकल योर PhD विल बी अवॉर्डेड। दोनों जाए बहुत अच्छा है, मिनिमम एक तो होने चाहिए। तो सर मतलब 2 आर्टिकल हो तो दोनों डिफरेंट में हो या सेम में हो सकते हैं? सेम नहीं, सेम में भी हो सकते हैं, सेम में भी हो सकते हैं, सेम में भी हो सकते हैं। एक जर्नल में आप 10 आर्टिकल भी छा सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है और आर्टिकल देने वाले को। हाँ, आई थिंक जितेंद्र कुमार जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, बताइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर पेपर में जर्नल में पेपर सबमिट करने से पहले अबाउट द जर्नल जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर डिटेल, तो किसी में सर सिंगल ब्लाइंड पीयर रिव्यू लिखा होता है, किसी में डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू, तो दोनों में सर डिफरेंस जैसे क्या है? इसमें बेसिकली ऑथर्स के नाम हटा देते हैं। सर सिंगल ब्लाइंड पीयर रिव्यू जर्नल लिखा होता है, किसी में डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू। डबल ब्लाइंड ये होता है कि दोनों को नहीं जाता है, आपको कंप्लीटली जो है वो आपको देना होगा, तो उसमें ना रिव्यूअर्स के पास जाएंगे नाम आपके, ना एडिटर के पास जाएंगे। और हेलो सर, एडिटर को पता होगा लेकिन रिव्यूअर्स के पास नहीं जाएगा वो। जिस सर थैंक यू वेरी मच सर वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। सर। एक क्वेश्चन सर पूछना, मैं ये सर, पूछना एक चाह रहा हूँ क्वेश्चन। सर कि ये इंट्रोडक्शन सर जो है वो कैसे बेहतर से बेहतर लिखा जाए, क्योंकि इतना सारा लिटरेचर है सर। आई एम फ्रॉम फिजिक्स बैकग्राउंड, तो उसमें सर जो है पेपर लिखते हैं तो सर ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन कभी कभी ऐसा हो तो कॉमन हो जाता है, हम कितना भी चेंज करके लिखिए। टॉपिक बताइए पहले मुझे। तो टॉपिक हमारा सर जो है वो मैंगेनाइट है सर, मिक्स्ड वैलेंट मैंगेनाइट सर, मैग्नेटिक मटेरियल है सर ये जो है। तो आपका जो इंट्रोडक्शन होगा, मैग्नेटिक मटेरियल को कहाँ यूज कर रहे हैं आप, एप्लीकेशन क्या है, या उसका कोई बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल का दिखाया आपने।
बेसिकली जो मेन बेसिक क्राइटेरिया है इंट्रोडक्शन का वो ये है, इसका नाम बैकग्राउंड है इंट्रोडक्शन का नाम. इफ यू राइट इन थीसिस यू हैव टू राइट ए बैकग्राउंड, मतलब उसे बैकग्राउंड ज्यादा बेटर है, राइट? जी सर. बैकग्राउंड मतलब होता है अब तक इस पे काम क्या हुआ है. यस सर. तो जो लिमिटेड चीजें हैं जो अब तक काम हो चुका है उसको आप उसको डिफाइन कर दीजिए. जी करेक्ट. सीक्वेंशियल जी, वे सर. में बिब्लियोग्राफी डालते रहिए, रेफरेंस डालते रहिए, और फिर जी, इन द लाइट ऑफ दैट आप अपना ऑब्जेक्टिव रेज कर दिए. सब इस बैकग्राउंड की लाइट में हम ये करना चाहते हैं. अब So this is the ideal way to write the introduction. या दिस एक पेज का 1.5 पेज का इंट्रोडक्शन बहुत होता है, ठीक है ना. अच्छा, कोई somebody is asking me the what is the criteria for increasing the citation, correct? Yes sir. There is no way to increase your citation except that you publish your work in the core journal. ये citation आपके हाथ में नहीं है. citation तो मान ली आपने पेपर लिखा और मैंने आपका पेपर देखा, मेरे मर्जी में साइट करूं या नहीं करूं. 10 तरह का काम मैं किसी और को साइट कर दूंगा. या तो इतना इंपॉर्टेंट आपका काम हो, मेथोडोलॉजी आपने डेवलप की है, वो मैंने यूज की है, वो इम्पैक्ट सॉफ्टवेयर फैक्टर सर किस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं सर? ये कैसे कैलकुलेट होता है सर इम्पैक्ट फैक्टर सर? देखिए इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट होता है टोटल नंबर ऑफ साइटेशन से, है ना, जर्नल की, और कितने पेपर उसमें पब्लिश हुए हैं उस साल में, कितने आर्टिकल पब्लिश हुए हैं और कितनी दफे साइट हुए हैं. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. थैंक यू सर. थैंक यू Sir, I have one more query. सॉरी. I want to know if I write a project for DBT or any other laboratory or institute, then the duration for which I do the project will be counted in my service or not? If you are working in a some I work on a project, uh-huh. then my duration of the project will be counted in my service or not? No, if you are faculty member, Yes, yes. and if you are working on in a project same Yes. in your faculty as a PI or as a co-PI, Okay, that okay. is part of your service anyway. You are while you are doing service as a lecturer, assistant professor, you are doing the project. Doesn't matter. You आप एक साथ 10 प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं. You can work on 10 projects. You can work on 2 projects, 3 No, projects. sir, यहाँ पे ना हमारे कॉलेज में एक सीनियर प्रोफेसर थे, उन्होंने प्रोजेक्ट किया, बट उनकी जो ड्यूरेशन थी प्रोजेक्ट की, उनकी प्रमोशन के टाइम पे प्रॉब्लम आई, तो उनका वो ड्यूरेशन है जो वो सर्विस में काउंट नहीं कर रहे थे. No, that's totally absurd. It's totally lack of knowledge. I mean, this is. Then we have to take leave or we have to work in the college. यानी work देखिए ऐसा है ना, प्रोजेक्ट इज डिफाइन, you have to define 40% 60% वर्क आपका प्रोजेक्ट में जाएगा और 60-70% वर्क टीचिंग में जाएगा. लेकिन इफ यू आर कंप्लीटिंग taking all full load of teaching and an extra work you are working on a project research, there's no harm in that. ऐसा नहीं है, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. इट इज अ क्वेश्चन ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर हेड और प्रिंसिपल और बिकॉज़ यूनिवर्सिटीज में तो ऐसा चलता है कि प्रोजेक्ट भी चलते हैं साथ साथ में, है ना, और टीचिंग भी चलता है. बट यहाँ कॉलेजेस में ऐसा है, पहले तो है नहीं कुछ रिसर्च करने के लिए, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही फैकल्टी को अपॉइंट किया गया है, और हमें वर्क बहुत ज्यादा होता है. बाय द टाइम द पर्सन और यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, क्या टीचिंग चल रही थी नहीं चल रही थी साथ में, वो टीचिंग ले रहे थे नहीं ले रहे थे वो प्रोफेसर. Okay, we have to take our classes as well as do the research. Yes. Okay, then there will be no problem. No problem. You have to show the all teaching load on your timetable. That's it. You can claim जैसे that. मैं Sir, thank you. 2:30 तक अलाउ हुआ है, तो 2:30 के बाद आप रिसर्च में अपना टाइम Exactly. दे सकते अरे यार, आप रिसर्च की, आप प्रोजेक्ट की बात कर रही हैं. नई जो गाइडलाइन है यूजीसी की, वो ये कहती है कि साहब आप अगर कोई कंपनी भी चला रही हैं, प्राइवेट कंपनी चला रही हैं. ओके. इसके साथ एक क्वेश्चन और भी है सर, पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई किया जा सकता है? सर बस. हाँ, कर सकते हैं. Yes, anybody हेलो else? सर, थैंक यू रोहिला यार. हाँ, थैंक यू. सर अभी आपने सर जैसे अभी एक सर ने पूछा था कि जैसे कि अगर पीएचडी सबमिट करना है तो यूजीसी लिस्टेड में आपने कहा था एक पेपर एटलीस्ट पब्लिश होना चाहिए. सर कई बार जर्नल क्या कहते हैं कि पेपर एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन पब्लिश करने में काफी टाइम लगा देते हैं, तो उस कंसीडर में हमारा एक्सेप्टेड पेपर में भी हम अपना सबमिट कर सकते हैं? एक्सेप्टेड नहीं कर सकते हैं सबमिट. हाँ, क्योंकि पब्लिश करने में टाइम लगा देते हैं, कभी-कभी 1-1 साल लगा देते हैं. अगर एक्सेप्टेड लेटर आपके पास है, you are full right to publish it. You can submit. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, thank you, sir. Okay, friends, thank you very much, and Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir.
Thank you, sir. Thank you very much. बहुत अच्छा लगा आपके क्वेश्चंस, वेरी गुड क्वेश्चन। Thank you so much, sir. Thank you, sir. Okay, I think give me permission to close it, है ना? Okay, thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. Okay, bye. Thank you, sir. Bye bye. 3 बच्चे हैं। तो 3 बजे से जाने की क्या क्लास है? कल 3 बजे स्टार्ट नहीं करेंगे।